तो हम लोग बाद में कर लेंगे क्योंकि है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज, तो इसलिए करेंगे पर थोड़ा बाद में। सर कटा हुआ है ये कब कटा हुआ है? फिर थर्ड लो ये लाइन खत्ता नया था ये फिर थर्ड लो बचा हुआ है ग्रेविटेशन का Now things are very less for us to cover. Okay. एक ही टॉपिक है ना बस। Third law of motion. So third law of motion states that for every action. सर फैन इधर every action there is a reaction आता है। हाँ every action So okay, now get set. Third law states that for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction reaction. So this third law is so crispy that it is also used in Hollywood and Bollywood movies. That for every action there is equal and opposite reaction. So I will take revenge. We are Avengers. So they are telling so. Why they are showing? Because this its language is so simplistic. However, very fundamental and basic. Let us understand how. Now, just blow a balloon and आपको मालूम है जिसमें धागा लिपटा रहता है, एक इस तरीके का रोल होता है गत्ते का, ठीक है? जिससे मम्मी स्टिचिंग कर रही है। बैलून चिपका दिया, अब बैलून चिपकाने के बाद खोल दिया, तो बैलून बताओ इसकी हवा अगर इधर निकलेगी, ठीक है? समझ नहीं आया जैसे हमने इसका धागा खोल दिया तो हवा निकलेगी। हाँ। और धीरे धीरे अगर हवा इस साइड एयर जा रही है तो बैलून किधर जाएगा? इसके अपोजिट चला जाएगा। सो अगर हम इसे एक्शन माने तो ये इसका क्या होगा? ऑपोजिट रिएक्शन है, तो ये इसका रिएक्शन हो गया। नाउ इफ सम राउंड इज फायर्ड बाय सम पिस्टल एंड if bullet is moving ahead, then have you felt any recoil when bullet is fired? कभी बैलून या कभी आपने मारा होगा तो पीछे एक recoil आता है। तो इस तरीके से now bullet moves ahead, so there is revolver recoils back. Revolver recoils back. Let's take one more example. Now, if this is boat and Jack is moving ahead from boat to here. So as Jack moves here, then गिरने वाला है वो। He's just about to leave this boat. So it is water. Will boat move in the equal direction? Yes, sir. So Jack is moving ahead, and when we push the earth on ground, then are we moving? It is a kind of rolling action. You are pushing the ground back, then you are rolling back. So it is a kind of rolling back. We are pushing the ground. See, it is a pushing the ground. We are pushing. It is not that we are pushing that. If you push this way, then you will go backward. And if you push backward, so you will move ahead. ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर उसी तरीके का एक्शन हो रहा है. Some more examples can be taken. Like when Aryabhatta or any other rocket is launched or satellite is launched, so we are seeing that its smoke is moving backward. And if it's a smoke or propulsion charge is moving backward, or is the rocket is moving ahead? So this is smoke moves backward
and this satellite moves ahead. ये भी बात है. Now there are some other examples also, like if this aircraft, if its charges, propulsion charges are moving in backward direction, in which direction the pilot along with plane will move? So in forward direction. So plane along with its pilot is moving in forward direction. Even have anybody of you swum anytime? So when you push your hand back, then only you can move ahead. Otherwise, if you push your hand in front direction, then you will go back. This is the simple manner. ये बात आपने देखी कि नहीं? आपको पानी पीछे फेंकना पड़ता तब आप आगे जाते हो. तो इसलिए इसका जो स्मोक है या जेट प्रपल्शन है वो कहाँ जा रहा है? पीछे. इसे आप एक्शन कह सकते हैं. और इस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कहाँ होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन एंड जेट प्लेन मूव्स अहेड. ये बात आपने देखी है. ठीक है. सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स व्हिच आर शोन हियर. नाउ so what is third law of motion? For every action there is an equal and opposite reaction. Okay. Now why it is difficult for firefighters? इतना मोटा मोटा होज होता है उससे पानी फेंकते हैं जिसमें आग लगी होती है. जो अग्निशमन अनुभाग होता है ना, आग को बुझाता है, तो दमकल विभाग, तो वो जब पानी आगे जाता है वो पाइप ऐसा होता है जैसे पीछे फेंक रहा हो. उसको होल्ड करना कितना मुश्किल है. अगर सिर्फ छोड़ दो ना तो ये भाग जाए पीछे. हाँ, तो उसको 3 लोग मिलके होल्ड करते हैं. क्योंकि इतना पानी आगे जा रहा है तो वो तो पीछे जाएगा. सो आपके बुक का एक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर होज पाइप टू होल्ड फॉर फायर फाइटर्स. ठीक है. क्वेश्चन है why it is difficult to hold. Sir, in text आगे दिखाने को मिल जाएगा कहीं. ठीक है. Hold hose pipe for firefighters. Firefighters के लिए क्यों होता है? When see this is the hose. So it is the hose from which water is moving in forward direction, and this firefighters, they are holding it manually with large force. Because अगर ये पानी आगे जा रहा है तो इसकी क्या रिएक्शन होगी बताओ? होज की वाटर आगे जाएगा तो ये चीज पीछे भागेगी कि नहीं? ये शायद गन की तरह है. गोली आगे गई तो ये बिल्कुल वही चीज है. तो ये वाटर मूव्स फॉरवर्ड, तो होज इज लाइकली टू मूव बैकवर्ड. होज इज लाइकली टू मूव backward. So now let us see why it happens for them to hold it. Okay. Okay. So it is difficult to hold hose pipe in position. होज का मतलब है ऐसी चीज जो मुड़ जाए. होज ऐसी चीज होती है जो घूम घाम के चली जाती है, उसको होज पाइप. एक होता है रिजिड पाइप और एक होता है होज पाइप. इन पोजिशन एज a lot of water moves in
फॉरवर्ड डायरेक्शन, थ्रू इट, इसमें से पानी निकल रहा है, थ्रू इट, इन टर्न, फॉर दिस एक्शन there is equal and opposite reaction in backward direction. सर अगर आज ही खत्म हो गया तो कल तो मैथ्स करेंगे। Backward direction. So muscular, large muscular force is needed to hold सर it. अभी तो ग्रेविटेशन बचा और सबसे पहला So large muscular फाइन ग्रेविटेशन से force is needed to hold it. ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, यही जेट प्रोपल्शन प्रिंसिपल भी है, बात ना करें। सो इट इज ऑल्सो जेट प्रोपल्शन प्रिंसिपल। नाउ what are the points to be kept in mind for third law of motion? न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में क्या बातें जाननी आवश्यक हैं? So the points are to be adhered in mind while using this law. So points for third law. अर्पिता एक कोई पॉइंट बताओ। सर 4 पॉइंट तो दिए हैं उनमें से आप नहीं, उनको हथा भी नहीं है। हाँ। जैसा कि अर्पिता ने कहा कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड देयर इज नो टाइम लैग। ये नहीं कि एक्शन हुआ तो फिर रिएक्शन देर में होगा, जैसे कि रावण सीता को ले गया तो 1 महीने बाद में छुड़ा के लाए, इतनी देर बाद रिएक्शन नहीं होगा। या ऐसा नहीं होगा कि विलन कोई हीरोइन को ले गया है तो हीरो 1 महीने बाद जा रहा है छुड़ाने, वैसा भी नहीं होगा। इट इज, अगर तुमने मुक्का मारा है दीवार को, देन विदाउट एनी लैग ऑफ टाइम आपके हाथ में निकल जाएगा। अगर यहाँ से हवा निकली है तो इसको तुरंत रिमूव करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इसे एक्शन कहा जाए, इसको भी एक्शन कह सकते हो। हाउएवर वी नो दैट इट्स दिस इज आफ्टर इफेक्ट, इसकी वजह से ये हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं ये ना होता तो ये ना होता, तो इसलिए इसको एक्शन कह देते हैं और इसको रिएक्शन। लेकिन न्यूटन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी एक्शन कह सकते हो और किसी को भी रिएक्शन कह सकते हो। सो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। उसमें कोई टाइम लैग नहीं है कि कल तुम्हारे दोस्त ने तुमको मारा तो आज तुम बदला लेके गुप्ती लेके चले, गुप्ती निकाल के गुप्त रखी जाती है। रामपुरी चाकू। एक्शन एंड, सर सेकंड वाला मिल गया मुझे। ठीक है, अभी बताना। एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। पेज नंबर बताना। There is no time lag between them. There is no, उनके बीच में कोई टाइम का गैप नहीं है। Between them. अगला बोलो। Force act on a different object that may have a different mass. हाँ, जैसा कि ये बात कही गई है कि अगर मान लीजिए इस बॉल ने इस बॉल पे एक्शन किया, ये इस पे हिट करी है, तो बताओ सेम बॉडी पे एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होता है। ये बॉल आई पहले और इस बॉल ने इस पर हिट किया, तो जब ये हिट करेगी तो ये बॉल क्या करेगी, इस पे हिट करेगी। भाई इसने इसको हिट किया तो इसने इसको हिट किया, फिर फाइनली ये इधर मूव कर गई और ये इधर। तो एक्शन एंड रिएक्शन सेम पे नहीं लगता है। तुमने एक बॉल मारी किसी चीज पे, तो बॉल ने उसको टक्कर मारी, तो वो बॉल वापस आएगी कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? ये नहीं है कि इसी पर एक्शन और रिएक्शन हो,
कि ये बोलो ये रहा एक्शन और ये रहा रिएक्शन और हो गए बैलेंस फोर्स ऑफ 0, ऐसा नहीं है, दोनों बॉल मूव करेंगे। सो अगर इफ वन ऑब्जेक्ट हैज सम एक्शन ऑन दिस, जैसे बैट ने बॉल पर एक्शन किया तो बॉल ने बैट पर जर्क मारा, बैट फ्लिक होता है थोड़ा सा पीछे, बहुत भारी बॉल होती है, तो बॉल बैट पे रिएक्शन करेगी। तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट चीजों पर होता है, जैसे गन और बुलेट। गन ने एक्शन किया बुलेट पर, तो बुलेट ने गन रिवॉल्वर पर क्या किया, रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हवा पे एक्शन हुआ है तो बैलून जो पिचक रहा है उस पर रिएक्शन हुआ, मतलब प्रोपल्शन चार्ज पर एक्शन हुआ, धुआं जो छूट रहा है, तो रिएक्शन किस पे हुआ, रॉकेट पे ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। बैलून में हवा जो निकली, अगर वो एक्शन है, हवा अलग हो गई, डिपार्ट हो गई, और रिएक्शन क्या हुआ बताओ, रिएक्शन क्या हुआ, जो बैलून जा रहा है आगे, आप देखो उसमें फिगर बना हुआ है। सो एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक ही पे नहीं लगेगा, अलग अलग है ना। रिवॉल्वर और उसको देखो, गोली पे एक्शन हुआ तो रिवॉल्वर पे रिएक्शन। दो आदमी भी टक्कर मारते हैं, जैसे तुम खेलते खेलते इनसे टकरा गए तो तुम इनको चोट मारोगे, ये तुमको चोट मारेंगे, दोनों ही गिरेंगे, ऐसा होगा कि नहीं, दोनों को चोट लगेगी। सो एक्शन एंड रिएक्शन takes place on different objects. ठीक है, अब जरा देखो कि if action is, now the next question देखिए, if action is equals to reaction, then how horse pulls a cart? आपने लगा तो इसके 4 पॉइंट है। हाँ? आपने लगा तो इसके 4 पॉइंट है। अच्छा, और भी बता रहे, ठीक है, नहीं सर 2 ही ठीक है, अगर 4 एग्जाम में आ गए नहीं आएंगे, सर नहीं आएंगे, सुन लिया तो मत लिखवाओ फिर। बस इतने ही छोड़। नाम बोल रही थी कि मतलब जो होते हैं ना कि स्नो पे नहीं, सैंड पे चलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर होता है क्या? मिट्टी पे चलना क्योंकि उसके अंदर भी फंस- It is, वो पीछे धंसती जाएगी, जैसे आप क्या सैंड पे चलोगे तो वो पीछे की ओर घुसेगी सैंड, मतलब वो इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेगी जिससे हम आगे बढ़े है ना, एक हार्ड और रिजिड ग्राउंड पे आपने एक्शन किया, रिएक्शन नहीं आ रही है। आप ऐसे देख लो ना कि सैंड उधर मत बात किया करो, ये ट्रेंडी गलत है। आपके पास इतने सारे सामान है बात करने के लिए। अब देखो, अगर आप बालू पे बॉल मारो, बालू पे बालू क्या होता है, सैंड, तो क्या ये बाउंस बैक करेगी? क्योंकि उसका बहुत सारा फोर्स उसी में धंसने में लग जाएगा। सो जबकि अगर आप हार्ड ग्राउंड मारोगे तो रिएक्शन होगा, तो इसलिए रिजिड ग्राउंड पर क्या होगा कि उसमें कंप्रेशन होता है, और जब वो रीअसर्ट करेगी, झटके बॉल दबती है, और दबने के साथ जब रीअसर्ट करती तब उछलती है, और वो दबेगी नहीं अगर बालू में मारोगे, वो तो धंसती चली जाएगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सैंड एक्शन का प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे रहा, रिएक्शन होता है क्योंकि एक्शन के भी, लेकिन वो आप सोचोगे उछाल में देगा तो उछल कर नहीं देगा, क्योंकि वो रीअसर्ट ही नहीं करेगी। स्प्रिंग अगर दबेगी नहीं तो उछलेगी कैसे, बोलो। अब जरा देखो, तो बॉल में स्प्रिंग होती है, बॉल अगेन इज डूइंग एन स्प्रिंगी एक्शन। इट इज, कभी आपने देखा है कि वो जब आप रैकेट से बॉल मारते हो, वो लॉन टेनिस में, वो आधी तक दब जाती है उसी रैकेट में, है? जब हाँ कोई भी आधे में फिर से वो रीअसर्ट करता है। नहीं देखा, देखो उनका जो लॉन टेनिस खेलते हैं, कौन है टॉपर इसमें? कोई नहीं लॉन टेनिस सर, टीवी में दिखा नहीं, टॉपर नहीं, एक जिसका नाम है रिनोल्ड, कोई हस्ती बताओ। जोकोविच होगा। विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री, विली वोंका और वो जो सेरेना विलियम्स थी, जो 2 बहनें थी, नहीं विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री ना। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पेज नंबर 126। बात कही गई है कि
pulls a cord. When action is equals to reaction, तो कार्ड को कैसे खींचता है? फर्स्ट Horse. According to Wikipedia, the horse is a domesticated one. अब जरा देखो, जरा देखें। So कह रहा है कि how horse pulls a cart when सर की ड्राइंग अच्छी है। पिकासो पिकासो है ना। अब देखें, now this is a cart and it is pulled by a horse. So सर आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी कौन ये अक्षय अर्पिता ने पहना नहीं चलो, वो किसने पहना है? किसी ने नहीं, अक्षय था वो। when horse push, सुनिए जरा, वो लग रहा फोटो में खींच तुरंत बना देते। When horse pushes the ground back, ठीक है, then as a reaction horse moves forward along with cart. बहुत आसान है कि नहीं? So when बना दे horse pushes the ground back, then due to this backward action, horse experience a reaction force in forward direction so it moves in forward direction along with cart along with इसलिए वो कार्ड के साथ आगे बढ़ जाता। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, सेकेंड वाइफ इज डिफिकल्ट टू होल्ड, तो क्या ये आपको कराया जा चुका है? कहाँ क्या अभी क्या? कौन सा क्वेश्चन? What is the question? अब देखो, अरे नाउ एक्सरसाइज पे आएंगे। कंजर्वेशन बाद में करा देंगे, अभी कौन जल्दी है जब नहीं आ रहा है। हमारे सर तो कुछ बताया नहीं क्या आ रहा है। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, सर फोर्थ क्वेश्चन भी तो है। वो सब कंजर्वेशन पर है। हाँ वो कटे हुए। सर घोड़े की फोटो देख के बना रहे थे। हाँ बना, फिर तभी तो सीखेंगे। क्या सीखा ही हमने एक बार बनाया। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो एंड बैलेंस फोर्स। सुनिए, पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट
zero unbalanced force. Is it possible for an object to be traveling it with a non-zero velocity? अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो नॉन-जीरो वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कह रहा है, इस पर नेट फोर्स जीरो है। कैसा हो सकता है? और वो चलता रहे कि बोलो ये क्यों कह रहे हैं कि यस? सब तो नो बोले, मैंने नो बोला। देखो ये यार यस बोली, मतलब क्यों बोली जो इसका इंजन है, तो इंजन का इसे आगे बढ़ाना चाहता है। हाँ। और फ्रिक्शन पीछे। तो इफ फ्रिक्शन फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय इंजन, देन बोथ विल कट ईच अदर एंड द व्हीकल कीप ऑन मूविंग विद द सेम। फिर से समझो, किसी भी चीज पे फ्रिक्शन लगता है तो क्या वो रुक जाती? बॉल ही फेंको, लुढ़काओ तो रुक नहीं जाती है। अगर सिर्फ उससे उतना ही फोर्स लगातार लगाते रहो कि जितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो उसी स्पीड से लगातार मूव करती जाएगी। क्या यही अरिस्टो ने नहीं कहा था, अरिस्टोटल ने शुरू में, कि किसी चीज को उसी स्पीड से, अच्छा फिर से समझो, ऐसे बताओ इंटरस्टेलर स्पेस में क्या प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अंतराणविक आकाश में? उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। अगर आप फ्रिक्शन को काउंटर एक्ट करने के लिए उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाओ, ज्यादा ना लगाओ, तो क्या वो उसी स्पीड से चलती रहेगी? एक अलमारी को ड्रैग कर रहे हो, सिर्फ उतना फोर्स लगाओ जितना फ्रिक्शन है, तो फिर फ्रिक्शन को काट दिया आपने। वास्तव में जब आप एक फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन उतना ही लगता है, आराम से वो चलती रहती है। अब क्या आपने कभी स्कूटी चलाई है 40 की स्पीड से? नहीं। एक ही स्पीड से? तो उसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? बताओ आप ये बताओ, उसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो है। उसके फ्रिक्शन को कौन काउंटर एक्ट कर रहा है? इंजन। तो इंजन ने फॉरवर्ड लगाया, फ्रिक्शन बैकवर्ड लगा रहा, वो दोनों काउंटर कर लिया और आपकी स्कूटी क्या एक ही स्पीड से चल रही है। ऐसा क्या ट्रेन में भी होता है कि एक ही स्पीड से ट्रेन मूव कर रहा है? होता है बहुत बार, ट्रेन में भी होता है। तो बताओ वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, इससे क्या साबित होता है? If you are pedaling a cycle and you are moving a constant speed in certain direction, then you are applying only that much muscular force which is needed to counteract the friction. ऐसा है। आप एक ही सुनो, समझ लो बात को ना, कि कोई चीज एक ही डायरेक्शन में एक स्पीड से कब चलती है? When there is, if object is under balanced force, if object is under, इसका मतलब नेट फोर्स क्या हुआ? जीरो। अब तुम ढूंढने जाओ, नहीं जीरो कहाँ ढूंढे, तो वहां तो ग्रेविटी है, वहां भी जीरो नहीं, तो पूरी दुनिया में जीरो है ही नहीं कहीं, फिर तो तुम्हारा फिजिक्स ही बेकार हो गया। बोलो ग्रेविटी से कहाँ पीछे छुड़ा लोगे? छुड़ा पाओगे? तो कह दोगे दुनिया में कहीं भी बैलेंस नहीं क्योंकि कहीं ग्रेविटी, तो उसके अपोजिट उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं इस पेन को होल्ड किया हूँ, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं क्या अपवर्ड नहीं लगा रहा हूँ फोर्स? तो अब समझ में आ गई बात की नहीं? तो इस पर नेट समझो जरा, इस पर mg नीचे नहीं लग रहा है वेट, अब मैं इसको ऊपर नहीं उठा रहा, होल्ड करने में तो फोर्स लग रहा है, तो मैंने ऊपर फोर्स लगाया, और नहीं तो बच्चा होता नहीं तो गिरा जा रहा है मम्मी, तो वो तो ऐसा बोलता जाएगा। तो when we are applying same force, then only we can hold it. और इसी तरीके से if this car is moving with constant speed, then there is, उस पर कितना फोर्स है बताइए? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जीरो अनबैलेंस। हाँ सब अभी समझा, एक बार लिखो फिर समझाऊंगा, पहले लिखो इसको। Once you establish the motion, then it keep on moving with same speed if you not accelerating it. तो आपका इंजन जितना फोर्स लगा दिया, आपने उसको 40 की स्पीड पे सेट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि इंजन रुका है, इंजन उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरू में, धीरे धीरे आप रेस देते हो, लेकिन कहते हो अब 40 की हो गई, अब इंजन तुम ऐसे ही चलना, 40 तक ले आओ, 40 तक ले आओ किसी चीज को, फिर उसके बाद तुम ट्रेन से कह दो कि तुम सिर्फ उतना ही फोर्स लगाओ जितना उसके बीच में ड्रैग फोर्स है। जो व्हील है ना और लोहे के बीच में, लोहे की रेल पटरी होती है और उसके बीच जितना ड्रैग, उसी को काउंटरेक्ट करो तो उतना ही पता कैसे चलेगा?
उतना जब आपका स्पीडोमीटर ना बढ़े वहीं पे उसको सेट कर दो ना बस, और सो जाओ, चली जाएगी वहाँ दिल्ली। समझ आई बात की नहीं? बट जब प्लेटफॉर्म पे जाएगा हाँ? जीरो हो रहा है तो हो जाएगा क्या? नेट जीरो हो रहा है। जब सुनो, ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, ये साक्षी ने, कि इफ नेट फोर्स इज जीरो तो रुकी हुई चीज रुकी रहेगी और चलती हुई चलती रहेगी। फर्स्ट लॉ से बताया इन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी। तो अगर हमने इंजन का फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल कर दिया तो क्या नेट जीरो है? और उस समय मेरी गाड़ी चल रही है तो क्या वो चलती रहेगी उसी फोर्स से? ये इन्होंने बताया है। बात समझ आई कि नहीं? इफ नेट फोर्स इज जीरो देन, और अगर आपने फोर्स ज्यादा बढ़ा दिया, सोचा और रेस कर देंगे तो स्पीडोमीटर बढ़ जाएगा, फिर आप ऐसे रेस करना। गाड़ी चल रही है, आपने पहले रेस दी, 40 पे सेट कर दिया, अब आपने उस रेस को वहीं रखा, चलाने के बाद 40 पे हो गई ना, तो उसके बाद अब आपने इंजन को वहीं सेट कर दिया कि अब नहीं बढ़ाएंगे। अब बस तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको रोक के रखो। जैसे एक पहलवान 4 आदमी को रोक के रखे और वो खिसकता चला जाए, उसी तरह से फिसलता चला जाए, लेकिन फोर्स इक्वल है, एक ही स्पीड से फिसलना है। पुलिस वाला रोकता है कि नहीं बैरिकेड? और अब 4 आदमी उधर से, दोनों का फोर्स इक्वल है, लेकिन अगर वो धीरे 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 फिसल रहा है तो इक्वल फोर्स है। However, once it is set in motion, now it is set. फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आई है, फिर से समझो। इसको मैं लिखाऊंगा तब तो समझ में आएगी, हवा में नहीं समझ आएगी ना, तो इसका लैंग्वेज होगा तभी समझ में आएगी। सो इसे बात को कि yes, it is possible. Net zero external unbalanced force. It is possible. सुनो, yes, it is possible. कैसे? As once satellite, बोलो, satellite is launched. अगर सैटेलाइट लॉन्च कर देते हो तो क्या उसकी ओपेगी और पेरेगी मोटर निकाल ले आते हो? क्या? सैटेलाइट के पीछे मोटर है, उसको स्पीड दे दी, अब बोला उसको वो नीचे आ जाता है, वो निकल जाता है, छूट जाता है। फिर क्या सैटेलाइट धरती के चक्कर मारता रहता है? फिर उसमें कुछ नहीं लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज जो बाहर है, या अर्थ कोई देख लो तो अर्थ मूव कर रहा है कि नहीं, तो मतलब फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है कोई भी चीज। अगर वंस सैटेलाइट इज लॉन्च इन इंटरस्टेलर स्पेस, बहुत दूर जहाँ कोई ना हो, तो एक बार उसको छोड़ दो तो वो जाती रहेगी, उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, तो उस पर कोई फोर्स लगा है क्या? नहीं, उस पर कोई मोटर लगी है क्या? नहीं। तो यही एग्जाम्पल है, तो सबसे अच्छा तो यही एग्जाम्पल है बात की नहीं? सैटेलाइट को आप कहाँ छोड़ के आ जाओ, बहुत दूर, बच्चे को जंगल में छोड़ के आ जाओ, घर ही नहीं पहुंच पाए। देखो, जब मैं ये कह रहा हूँ इंटरस्टेलर स्पेस, तो ये समझना दैट इज दैट स्पेस विच इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी। ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसा बहुत दूर होगा, ब्रह्मांड के किसी कोने में, दैट इज बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड मिल्की वे। ठीक है, मुझे क्वेश्चन पूछना है। आपने कहा था कि जब इंजन फोर्स 40 अप्लाई करेगा तो पीछे फ्रिक्शन 40 लगेगी, फ्रिक्शन उतनी लग रही है, उसको वो काउंटर कर रहा है, वंस इट इज तो सेटिंग, मतलब वो बैलेंस फोर्स है ना? अब बैलेंस हो गए, तो फर्स्ट ऑफ मोशन है ना बैलेंस, तो फर्स्ट है, तो मतलब वो क्या फोर्स है? हाँ? तो मतलब ये इतना भी तो लिख सकते हैं ना, yes it is possible as first law of An object experience in net zero. Net zero लिख रहा है कि नहीं? sir it is इधर possible लिखाइए, net zero external balance force। ये सेंटेंस जीरो भी लिख रहा है, unbalanced। देखो बुक में, बुक कहाँ खुली है, इसमें दिखाओ, सर मेरे को नहीं समझ आया। समझो, जब जीरो बोल रहा है तो अनबैलेंस होता है। हाँ ये तो गलत है, गलत बात बोल रहा है कि नहीं? बहुत गलत है। एक ही चीज बोलना चाहिए, जीरो बोले
और जीरो फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स होता है नहीं? तो ये दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है बताओ? जीरो भी बोल रहा है और अनबैलेंस भी बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये देखो, इज लॉन्च इन इंटरस्टेलर स्पेस। तो सर फिर ये लिखो तो इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, मैं इसको करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ। इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ दिया। लेकिन क्वेश्चन आंसर यही आएगा ना। क्वेश्चन गलत है। जीरो फोर्स बैलेंस फोर्स हाँ मानते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस सर पर अगर बुक की ना देखें तो ये है ना कि ये बैलेंस फोर्स में है तो फर्स्ट लग रहा है उसमें। इट विल की और बुक की देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल। पहले लिखो तो, लिखोगे तब तो समझोगे। इट विल कीप ऑन मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन अंडर जीरो बैलेंस फोर्स। तो ये मैंने लिख दिया है। आई दैट इज एफ नेट कितना है? सैटेलाइट लॉन्च कर दो, चलती चली जाए। उसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या? मोटर हटा लो, मोटर तुम्हारे घर की है भाई। पीए सर्विस है, यही तो किया जाता है। और क्या, हमारे यहाँ से उड़ीसा से ये जो होता है श्रीहरिकोटा से बार बार सारी दुनिया कभी कहती है थाईलैंड आता है मेरी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, तो लॉन्च कर देते हैं ओपी की पैरी की, फिर ले आते हैं। अच्छा और किसकी लॉन्च करनी है? लॉन्च करवा दो उसी से 10 बार। दूसरे के स्पेस स्टेशन से भी तो हमारा देश तो किराए पे लॉन्च करता है दूसरों के सैटेलाइट। थाईलैंड जो उड़ीसा के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं। और जो पॉइंट छोड़ देना। कोई ना कोई तो इतने में श्रीहरिकोटा में रहता ही होगा। कर्नाटक में ऐसा ये ओडिशा। अरे उड़ीसा में नहीं। चलो तो आंसर लिख देना यस और उसकी कंडीशन भी बता देना। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या ऑलरेडी कवर्ड है? हाँ फायर वाला कारपेट को धोया गया था। थर्ड वाइट इज एडवाइज टू हो गया। चलो, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल, इट रोल्स ऑन ग्राउंड। बैट्समैन ने हिट सर कर ये क्या दिया। लिखा है अंडर जीरो बैलेंस्ड? बोलो बेटा। क्या लिखा है अंडर जीरो बैलेंस्ड? जीरो बैलेंस फोर्स, जीरो एक बैलेंस फोर्स है, जीरो अनबैलेंस्ड नहीं है। तो इसमें इसमें गड़बड़ लिखा है, हम नोट भेज देंगे, करेक्ट हो जाएगा। कई बार करेक्ट हो क्या ही पाओगे। चलो अब देखो, एफ नेट इज जीरो। एफ है वो। एफ नेट, ठीक। मैं फैक्ट लिखा था उसको। एफ नेट मतलब बैट्समैन हिट्स द बॉल आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, बॉल कम्स टू रेस्ट। अभिषेक बताओ कौन सा रीजन करेक्ट है? क्या बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, इसलिए बॉल रुक गई। दूसरा रीजन देखो, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो ज्यादा वेलोसिटी होगी। There is a force on the ball opposing the motion. तीसरा पॉइंट, there is no unbalanced force on the ball, so ball would want to come to rest. क्या आंसर सही? सेकंड वाला। सी द थर्ड वर्ड। हाँ, सी, यानी फ्रिक्शन की वजह से हो जाती। तुम चाहे किसी चीज को कितनी तेजी से मार लो, फ्रिक्शन उसे रोक लेगा कि नहीं? कैसे नहीं रोकनी? बोलो रोकना पड़ेगा। क्या कह रही हो? अगर बॉल को हिट किया, बॉल क्यों रुक गई? फ्रिक्शन इज ए फोर्स which always acts opposite to the relative motion between two objects in contact. तो एक चीज दूसरे पे चल रही है तो उसे कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा, क्योंकि वो धीरे धीरे उनके बीच में एनर्जी है। मेरा हाथ ये ऐसे गया तो सारी एनर्जी इसके बीच में हीट में कन्वर्ट हो गई। कोई भी चीज धीरे से आप करोगे तो क्यों रुक जाती? बताओ, व्हाट इज द थिंग व्हिच स्टॉप्स? बुक कोई सरकाओ टेबल पर तो रुक नहीं जाती है। स्नूकर बॉल रुक जाती है, मतलब टारगेट एंड व्यू जो उस पे बॉल्स होती हैं वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? इट इज द फ्रिक्शन व्हिच फ्रिक्शन से भी किस चीज का डाउट?
से छोटे पहले हो गया नहीं पहले 160 set in motion. जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो फ्रिक्शन के जीरो हो गया फोर्स। अब वो जो चल रही है उस पर फिर से फ्रिक्शन सुनो, जैसे फ्रिक्शन लग रहा है, आपने इंजन लगाया तो इन्होंने कहा कि इंजन ने तो फ्रिक्शन फोर्स को कट कर दिया। अब कह रही जो चल रही स्पीड इस पर फिर से फ्रिक्शन लगाओ। अरे वो काट दिया उसने उसको, अब दो बार फ्रिक्शन लगाओगे क्या? लेकिन काटा इंजन क्यों लगाया गया? सो दैट इट कंटिन्यू टू मूव ऑन स्पीड विद स्पीड। तो अगर गाड़ी को आप मूव करते हो तो ऐसे आप खुद धक्का दो या इंजन दे, एक ही बात है ना। मान लो तुम 4 लोग मिलकर कार को धक्का दे ले रहे हो, चल जाएगी कार की नहीं? वही काम क्या इंजन नहीं कर रहा है? यस सर। सो अल्टीमेटली अगर आपने देखा 10 न्यूटन 20 न्यूटन 40 न्यूटन में कार चली, अब तुम अपने इंजन से कहो 50 न्यूटन पे चलाओ, तो क्या उसको धीरे धीरे स्पीड मिलती रहेगी? क्योंकि 40 मैक्सिमम उल्टा था। हमने अलमारी को चला के देखा था, धीरे धीरे 40 पे वो चल गई। तुमने अपने इंजन लगाने 50 पे चलो, 40 पे रहोगे तो चल ही नहीं पाएगी कार। अब जब 50 पे चलने लगी धीरे धीरे उसकी स्पीड 1 2 3 4 10 20 40 पहुंच गई। अब बोलो फिर 40 पे आ जाओ चुपचाप। समझ आई बात की नहीं? 40 फ्रिक्शन है, उस पर कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है? फ्रिक्शन बढ़ता बढ़ता 40 तक ही जा रहा है। यस सर। तो आपने अपनी गाड़ी जब स्टार्ट की तो 40 का इंजन का फोर्स नहीं लगाया, 50 लगाया। क्यों लगाया 50? जिससे कि धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो, नेट 10 रहेगी कि नहीं? 40 फ्रिक्शन और 50 आपका, तो नेट कितना हुआ बताओ? 10। तो 10 से स्पीड बढ़ेगी। 10 का अगर एक्सीलरेशन होगा तो धीरे धीरे हर सेकंड में कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आपने कहा मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना न्यूटन का फोर्स लगाया बताओ? 10। अब F इज इक्वल टू क्या होता है? अगर गाड़ी 1000 किलो की है, एक कार 1000 किलो होती है, तो चलो तो इट इज 10 बाई और 1000, तो एक्सीलरेशन कितने का होगा? 100। तो क्या ये 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ? तो इतने की रफ्तार से हर सेकंड बढ़ेगी। वो बहुत धीरे है, करीब तुमको 20 मिनट लग जाएगा बड़ा। तो अब इसको 40 पे ले आओ इंजन को, रुकेगी नहीं, क्योंकि अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट काउंटर कर दिया। फ्रिक्शन पीछे खींच रहा था, तुम्हारा इंजन उतना आगे लगा दे। काउंटर आपने स्पीड सेट कर ली, 160 सेट इन मोशन, देन कीप योर कार अंडर बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स इज 0, सो इट विल कीप ऑन मूविंग। आपने फ्रिक्शन को किससे काट दिया? इंजन के फोर्स से। और आपकी चीज क्या ऑलरेडी मोशन में है, तो चलती हुई चीज चलती रहेगी और रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन को कौन देख रहा है? इंजन। आपने उसी इंजन से अपने कार की स्पीड बढ़ गई, तो इंजन अब उस पर ना रखो, नहीं तो फिर और एक्सीलरेट करेगी। इतनी करेंगे कि सामान नहीं पाओगे, फिर टकरा जाओगे किसी से। बोलो तो उसको उसी 40 पे ले आओ। एक्सेप्ट कर लिया तो 40 पे रख लिया, स्लो कर दो इंजन को, गियर बदल के स्लो कर दो, तो फ्रिक्शन को काउंटरएक्ट कर लेगा 40 पे। भाई आप क्या करो ना, जैसे कार में अलग अलग गियर होते हैं, तो आप गियर बदल के या किसी तरीके से फ्यूल कैपेसिटी कम करके आप तो पावर रेस दे सकते हो ना किसी को। तो पहले आप रेस दे के बढ़ा दो स्पीड, फिर इतनी रखो कि आपका स्पीडोमीटर ना बदले। वो 40 पे है, तो जितना फ्रिक्शन है उतनी ही इंजन की रेस रहे, तो दोनों काट देंगे। और तुम्हारी वंस इट इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग, क्योंकि वो दोनों फोर्स आपस में लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो। हमें क्या मतलब, जब दो मुंजियों में हो खटपट तो अपने बचने की फिक्र करते हैं। वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इंजन और फ्रिक्शन। दो बर्तनों में जब खटपट हो तो चुपचाप निकल जाओ। बर्तन में अब समझो कि जैसे कि हाँ। फिर हमारी जो कार है वो स्पीड 40 से ही चलेगी। फिर 40 से, क्योंकि तुमने दो फोर्स को काउंटरएक्ट कर दिया। अब न रहा फ्रिक्शन, यानी वो दोनों कैंसिल हो गए। कार आगे ले जा रही है और ये इधर ले जा रही, दोनों कट गए। तो कार तो मूवी नहीं करेगा। वो दोनों आपस में कट गए। तो मूवी अगर फ्रिक्शन 40 का लग रहा है और अब वो फ्रिक्शन को काटने के लिए इंजन फोर्स है। मूव ऐसा नहीं है कि जमीन में चिपका दिया है। 40 की स्पीड चल रही थी, फ्रिक्शन रोक रहा था, लेकिन जितने से रोक रहा था फ्रिक्शन उसको कह रहा है तुम 1 मीटर पर सेकंड से रुको।
तो इंजन कह रहा है तुम 1 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा स्पीड लो हमसे। तो वो चले। मतलब इंजन अगर इंजन रोक दिया जाए, तो मैं ये देख रहा हूँ इंजन रोक देने पर हमारी कार हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्लो होती जा रही है, 40 से 39। तो अपने इंजन को ऐसा सेट करो कि वो हर सेकंड रेस दे 1 मीटर पर सेकंड की। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो नहीं समझ आ रहा, मेरे को नहीं पड़ेगा फिर देखिए। अच्छा देखो, ये तुम्हारी कार है, ठीक है, सुन लो बेटा, और ये इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा ये 4 लोग हैं, सौम्या, अर्पिता, और ये धक्का ही देती जा रही है। अच्छा अब ये कार चलती जा रही है, कह रही आज तो बहुत मजा आ रहा है चलाने में, 1 घंटा चलाया। और फिर ये बोली ये रुक क्यों नहीं रही कार, हम लोग धक्का दे रही, रुकी क्यों नहीं। अब 4 लोग आपस में तय कर रहे हैं, ये इन लोगों का तो पसीना छूट गया 4 लोगों का, और ये वो कार मजे से चल रही है, वो चाहे 1 मीटर से टहलती चल रही है, समझ रहे हो। ये चारों इंजन है, ये चारों कौन है। अब अर्पिता थी, सृष्टि थी, और गरिमा थी, और नेहा, और ये देखो फ्रिक्शन लग रहा था, और ये धक्का दे रही तो चल रही। अब साक्षी कह रही रुक क्यों नहीं रही, ये रुकी क्यों नहीं, ये धक्का दे रही थी फिर भी क्यों नहीं रुकी। साक्षी के मन में ये प्रश्न है, और इंजन को ये चारों फालतू ही में प्रेशर लगा रही, फोर्स लगा रही, और वो एक ही स्पीड से चल रही गाड़ी। तो अब साक्षी का प्रश्न है, जब आप उस कार को सेट इन मोशन कर दे रहे हो तो उसको फोर्स क्यों लगा रहे हैं 4 लोग, बताओ। दे आर पुशिंग इट सो दैट दे कैन काउंटरएक्ट द इंजन, वो फ्रिक्शन फोर्स, तभी तो चल रही हो कार। क्या तुमने कभी धक्का देते हुए लोगों को नहीं देखा बाइक को। तो अब कहो कि ये चल कैसे रही है, ये यहीं चिपक क्यों नहीं गई। अरे धक्का इसलिए दिया जा रहा है कि फ्रिक्शन को काउंटरएक्ट किया जाए। अब वंस इट इज सेट इन मोशन तो वो चलती रहेगी। जो वो 4 आदमी कर रहे हैं वो इंजन कर रहा है, क्या दिक्कत है। क्या मैकेनिकल फोर्स नहीं होता कोई चीज। अच्छा हाँ, जैसे फैन जब चलता है तो उसको एक बार घुमा। अच्छा एक बार बताओ, 4 लोग धक्का दो, सुनो मेरी बात, 4 लोग धक्का दो तो क्या एक हल्की कार को नैनो दे दो, हल्की कार को क्या धक्का देके चला नहीं सकते हो, 1 किलोमीटर 200 मीटर तक तो चला सकते हो। तो क्या कोई प्रश्न है कि ये क्यों चल रही है, क्योंकि आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो जितना फ्रिक्शन को काउंटरएक्ट करने के थे। पहले शुरू में थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया होगा तो उससे स्पीड पकड़ ली, अब उसी स्पीड से चलाने के लिए बस उतना ही लगाओ कि चलती है। तो वो लोग फ्रिक्शन के काउंटर कर रहे हो, बैलेंस फोर्स से चलती रहेगी। नहीं समझा और फिर जब फैन चलता नहीं समझ, लेकिन देखो कुछ नहीं समझ। अगर तो कार चल रही होती नहीं रुका मैं तो ये देखिए फ्रिक्शन इस पर मैक्सिमम लग गया। फ्रिक्शन कितना न्यूटन लगा, 40 न्यूटन। अब इन लोगों ने शुरू में ज्यादा फोर्स लगाया था 45 न्यूटन, 5 न्यूटन ज्यादा लगाया। जब ये चल दी, बताओ आगे कितना फोर्स लगा इस पे, 5 न्यूटन का लगा। तो 5 न्यूटन लगा तो क्या 5 न्यूटन से ये चलेगी आगे। अब एक बार ये सेट हो गई मोशन में तो ये फिर 40 पे आ गई। ये लोग थोड़ा अब ढीले पड़ गए, सोचे कि नहीं अब तो गाड़ी चली दी है, अब और क्यों भगाना। तो जब ये चलने लगी, अब इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। 5 नहीं 2 ही रखो, टहल रही गाड़ी। हम लोग एक आदमी वॉक करता है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये लोग धीरे धीरे चला रहे। फिर इन लोगों ने क्या किया बताओ। 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ आदमी 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है। 5 मीटर कितना हुआ, जब इतना 3 मीटर है हाँ। तो 1 सेकंड में ये 3 मीटर है, इतना चल लेगा। कहाँ चले आते हैं सारे 2 मीटर तो चल लोगे कि इतना भी नहीं चल पाओगे। नहीं, इतना भी 1 2 मीटर नहीं चल पाओगे 1 सेकंड, इतने में हो जाता। मीटर ऐसे थोड़ी चलोगे। तो सेकंड में 1 सेकंड उतना ही होता है, एक बहुत बड़ी चीज है। 2 मीटर दिया ठीक है। अब ये देखो, अभी देखूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो, उधर देखो। आओ, ये सब लोग धक्का दे रहे हैं और ये फोर्स अब इन्होंने 40 न्यूटन लगाया और फ्रिक्शन कितना है। अब बताओ इसे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। कौन इस पर पीछे फोर्स लगा रहा है, दोनों तो कट गए। कौन रुके, कोई नहीं। ये आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, काट दे। सर अब क्यों रुके, ये लोग क्यों ताकत लगा रहे हैं, फ्रिक्शन को काउंटर रख के लिए ना।
तो अब बताओ नेट फोर्स इस पे कितना है? जीरो है, जीरो पे भी रुक जाना चाहिए. If there is no force acting on it, should it stop or not? No. क्यों करना चाहिए? जब है एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, आपस में कांटेक्ट हो गया. ये देखो, इस फोन को मैं इधर से भी दबा रहा हूँ, इधर से भी, तो ये जीरो है फोर्स. और अगर ये जीरो ही है अभी भी, अब चल रहा है तो भी जीरो है. क्योंकि समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. 40 ये लोग लगा रहे हैं. एक बार सेट हो गया मोशन में, तो उसके बाद ये ज्यादा क्यों लगाएंगे? ज्यादा अगर मान लो इन्होंने 41 लगा दिया, फिर स्पीड बढ़ेगी. अब 39 लगाया तो रुकने लग जाएगी. इन्हें उतना ही लगाना जितना फ्रिक्शन है, सिर्फ फ्रिक्शन को काउंटर. तो एक्सेप्ट कैसे पता चलते हैं? जो गाड़ी चला रहा है, जो धक्का दे रहा है, उसे पता चल जाएगा किस स्पीड पे. ऐसा कोई वीडियो नहीं है. तो वीडियो से मतलब नहीं है. तुम स्कूटी चलाती हो या साइकिल चलाती हो? हमने नेहा का बताया. नेहा उतनी स्पीड से ही पैडलिंग करती है कि बिल्कुल एक स्मूथ राइडिंग हो, ब्रीज एयर आती रहे, खूब अच्छा खुशनुमा माहौल हो, बढ़िया से चले. क्यों? उसे भगाना थोड़ी है. अगर एक दो टॉपिक छूट भी गया, मान लो थर्ड लॉ क्वेश्चन छूट भी गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. इसलिए वो खुशनुमा माहौल का आनंद लेती हुई आती है. आप समझी बात होगी नहीं? तो वो किसको काउंटर एक्ट कर रही है? Once she had smartly pedaled the cycle, now she has smartly slowed down the muscular force, so that it only smartly counteracts the friction. स्मार्ट नेहा. समझ में स्मार्ट समझ में आएगा? एक और प्रेस कर लो, फिर इतना ही इक्वल कर लो कि इक्वल हो गया, कट गया. The object which is set in motion under zero force will keep on moving. जो कार है उसको इक्वली फोर्स मिलते चलिए और इक्वली से रोका जा रहा है. अब चलो आगे बढ़ो. नहीं समझ में आए तो फिर आप धीरे धीरे आएगा. अभी और क्वेश्चन समझ में आ गया थोड़ा 50-45. एक बार हम लोगों ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, मोशन में आ गया, फिर कुछ लगा. सुनो ओके. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. तो a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance. ये ट्रक है और ये हिल से नीचे उतर रहा है. तो ये जो ट्रक आ रहा है, तो ये कितने डिस्टेंस में ऊपर है? अर्पिता करता है. एक सेकंड, मेरी गाड़ी है. अर्पिता की गाड़ी. Now don't shout, otherwise it makes me to speak louder and very difficult to speak for 4 hours. आप सोचो ना, सिर्फ 4 ही घंटे तो सर बोलते हैं, 1 घंटे घर में भी पढ़ाना पड़ता है. आप 4 घंटे सोचो ही नहीं बोलना. ये देखो 20 सेकंड्स. तो ये यहाँ से यहाँ कितने टाइम तक पहुँचती है? 48 सेकंड. ये एस है और टी कितना है? सर 400 मीटर है. ये 20 सेकंड. 20 मीटर. एक्सीलरेशन, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. और इट्स मास कितना है? 7 एक टन में कितने किलो होता है? बोलते ही आपको समझी में नहीं आ रहा है कि फर्क क्या पड़ रहा है. चलिए, है ना? तो मास इतना हो गया. अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है. तो अब इसमें ये क्या कह रहा है बताइए? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. यू कितना है? 0 मीटर पर सेकंड. और इतना चला 400 मीटर है. कांस्टेंट एक्सीलरेशन. और इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस. फाइंड इट्स एक्सीलरेशन. तो अब ये बताओ एस क्या होता है? प्लस हाफ 8 स्क्वायर. तो क्या ये 400 है? और यू कितना है? टी कितना है? और ए कितना है? ये निकाल. टी कितना है? सही है. तो बोलो 400
क्या है? दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन है, ये 3 लॉज ऑफ मोशन है। पिछला चैप्टर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो कब पढ़ा? अरे मोशन ने पढ़ा। अच्छा मोशन। ये देखो तो 400/200 क्या हुआ? एक्सीलरेशन कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे क्या करना है गरिमा? ए निकाल। एक्सेलरेशन निकल गया। फाइंड अब फोर्स फाइंड करना है। क्या करें बोलो? फोर्स इक्वल टू ma। F is equal to m into a. हमने तो उर्दू में पढ़ा था। हमने तो उर्दू में पढ़ा। सही बोला। सर एक चीज भूल गए। F equals to ma according to second law of motion. ये चीज देखो, सर के second law नंबर Of motion. Of motion. न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार। द्वितीय नियम अनुसार बोलो, बात समझ में आ गई? कितना फोर्स हो गया? ये समझ में आया कैसे निकाला? एक के बाद फर्स्ट निकालते हैं। क्यों? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन मैंने कराया है बटा हुआ। सर अभी देखो ये 2a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से निकल जाता है सुनो। ना। एक्सेलरेशन एक मिनट देखो, ये फार्मूला तुम्हें पता है? हाँ। बोलो 80 करो। सनी आप भी देखें, v माइनस यू है, u इधर ले आओ, u प्लस 80 क्या v पहला इक्वेशन बन गया? बोलो बात सही है? बताओ। अच्छा ये बात मुझे बताइए कि वेलोसिटी क्या होती है? अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है क्या? बोलो नया इतना आता है कि नहीं? यानी अगर आप 80 मीटर चली हो और 2 सेकंड में चली हो तो बोलो हर सेकंड कितना चली हो? 80 मीटर चल रही हो 2 सेकंड में तो 1 सेकंड में कितना चली हो? बोलो ऐसे चुपचाप बैठी रहोगी तो हम क्या समझाएंगे? 80 मीटर चली और 2 सेकंड में चली तो 1 सेकंड में जो चलो वही वेलोसिटी है कि नहीं? तो कितना हुआ? तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है? मान लीजिए एकलव्य, आपकी शुरुआती वेलोसिटी 10 है और आपने स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 से 30 कर दिया, तो बताओ आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी बोलो। जैसा कि एकलव्य ने बताया u प्लस v/2, तो यही बात तो बताई 40/2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ? 20 बताया कि नहीं? इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 है। तो बोलो मैं एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या लिखूं? u प्लस v/2 लिखूं? वो लिख देंगे। टोटल डिस्टेंस क्या है बताओ? s और t है। बोलो यहां तक सही है? अब देखो कि t यहां ले आओ तो बोलो यहां क्या हो जाएगा? हाफ u प्लस v इंटू टी हो जाएगा। यहां तक सही है? कोई मुझे बताएगा v का क्या फार्मूला? u माइनस 80। देखो ये बहुत अच्छा बता नहीं है, इसको नोट करो जल्दी से, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। माइनस प्लस का नहीं चलता है, उतना नहीं चलता है, वो बता तो रही है। सो हाफ और अंदर कितना आया? 2u प्लस 80 और इंटू टी। बोलो u प्लस यू जोड़ दिया, अब t को अंदर ले जाओ तो कितना आया बताओ? 2ut और प्लस 80 स्क्वायर। अच्छा अब मुझे बताओ s कितना आया? अब 2 से 2 कटा, बोलो s कितना आया? बोलो सेकंड लॉ समझ में आ गया? इक्वेशन ये समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी ये होती है, और एवरेज वेलोसिटी में मैंने क्या किया बताओ? v से मल्टीप्लाई किया, v की वैल्यू रखी यहां से उठा के। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी समझ में आ गई है
तो तुम मुझे एक और बात बताओ, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या तुम इस बात को जानती हो कि v माइनस यू क्या होता है? बोलो। 80 अच्छा, v माइनस यू ये होता है, और यहाँ से मुझे बता दो v प्लस यू क्या होता है? कोई मुझे बता सकेगा v प्लस यू क्या होता है? देखो ये बहुत अच्छा ये लोग बता रहे हैं, इसे नोट कर लो, क्योंकि कुछ लोगों ने 2s/t भी बोला, तू उधर ले गए, उसमें ये शिका दिए, समझ आई? ठीक है, इतना समझ में आ गया? देख लो आप पिता बिल्कुल नए तरीके से बता रहे हैं आपको तीनों, इसीलिए आपके लिए है। और लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर, राइट को राइट से, v माइनस यू और v प्लस, तो उधर क्या बना? वो तो सही है। अच्छा ये क्या हुआ बताओ? b स्क्वायर माइनस समझ में नहीं आ रहा। स्क्वायर t से t कटा तो क्या 2as आ गया? क्या हो गया? समझ क्यों नहीं आया मेरे को? नहीं यार, अरे तो a प्लस b माइनस b कितना आसान है, a माइनस आप समझो कितनी आसानी से आ गया। अरे ये तो आ गया, लेकिन ये जितना प्रोसेस किया वो कुछ नहीं समझ में आया। वो ना समझ में आया, मैंने ये उन लोगों को लिखा जो इनिशियली कर रहे हैं, ये इससे वो एग्री करते हैं, बोलो नहीं? तो मतलब आपके लिए तीसरी तरीके का फार्मूले का डिडक्शन है। तो 80 b क्या हुआ? u प्लस 80। ये फार्मूला समझिए एवरेज वेलोसिटी का, अभी बताया था एकलव्य ने, u प्लस v/2 करके, तो कैसे बता दिया। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन, ये करते हो नहीं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये लिख दिया, v की जगह v की वैल्यू डाल दी, बोलो इसका फार्मूला आ गया। अब वही v माइनस यू क्या लिखा? 80, और v प्लस यू क्या लिखा? यहाँ देखो, स्वामी ने बताया था 2s/t, कैसे बता दिया उसको? और इसका इसमें मल्टीप्लाई और उसका इसमें t टिकट आंसर आ गया। अब तो यूज करेंगे, और सही ऑथेंटिकेटेड है। नीचे से ऊपर से नीचे आ रही थी, हमने प्लस लगाया, पर अगर ये क्लियर हो गया? ये कैसे आया? देखो s = u से अभी आप समझ रहे, और फिर इसके बाद a आ गया, फिर f = में। हाँ बोलो। ऊपर से नीचे चली होती तो माइनस 40,000 मीटर लिख देना ऊपर से नीचे। वो रिटायर्ड तो वो जो होता है एक्सीलरेशन आता। अब देखें, चलो तो माइनस आता तो हाँ, माइनस तो कम आता क्या? नहीं बता रहे हैं। 14,000 आया तो किस कहाँ पे माइनस आता तो उसको प्लस वो जो आना होता आ जाता, रिटार्डेशन होता तो आ जाता। मान लो अगर ट्रक का इंजन बंद हो गया तो रिटार्डेशन धीरे रुक गया, अब ऐसा नीचे से ऊपर जाके तो भी फोर्स इंजन को ज्यादा लगाना पड़ेगा। माइनस नहीं आएगा। इंजन ही ज्यादा फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन को भी काउंटर करना, चढ़ना भी है। अब देखो, सो 6th क्वेश्चन देखिए, a stone of 1 kg is thrown with a velocity। ये एक स्टोन है और ये किस पर फेंका गया? फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। सो फ्रोजन सरफेस यानी आइस है, और कितना ये चला? 20 मीटर पर सेकंड। क्यों कितना बताइए? चला मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और फिर कितनी देर बाद वो रुक गया पत्थर? 50 मीटर। 20 मीटर है कि 50? 50 मीटर पे रुक गया ना, तो b कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। कितनी सारी चीजें दी हैं, तो आप क्या, आपके पास नेहा कोई ऐसा फार्मूला है कि इन तीनों की मदद से निकल रहा है? जैसा नेहा ने बताया कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as लिखिए सर, आपका काम बन जाएगा, आपको उचित मार्क मिल जाएगा। तो हम नेहा के कहने के अनुसार चलते हैं और ये देखते हैं कि जो नेहा ने कहा क्या वो सही है। तो हाँ, नेहा ने जो कहा वो काफी ठीक मिला, क्योंकि 400 = 100 है, तो -400 और अपॉन 100 क्या हुआ? तो a कितना हुआ? 4। लेकिन हमने क्या गलती कर दी? न्यूटन नेहा ने बताया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सर जरूर लिखना, नेहा के नंबर कटे। लेकिन हमने नहीं लिखा। सर के कटे ना। देख दे सही बात है।
हाँ ठीक है सर के नाम थर्ड जो था वही लगाया। एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर v minus c upon t से क्यों नहीं निकाल ये देखो इन्होंने बताया कि t नहीं है सर, v minus u by t मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कितना सचेत कर रहे हैं बच्चे, कितना बुरा कर रहे हैं। इन्होंने फिर सचेत किया। अब देखो तो सर के नंबर कटे। लो फिर कट गए। अब देखो 1 kg का स्टोन है शिका, मैं बताओ फोर्स कैसे निकालूं? अब कैसे बताऊं? 1 kg का स्टोन है ना, तो एड तो ही कर दो। लो दिस इज सेकंड, लो वो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन थ्योरी क्या है? लॉ ऑफ मोशन, सेकंड ऑफ मोशन। सो 1 kg और ये कितना है? तो क्या -4 न्यूटन का इस पर रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है, इसी वजह से रुक गया। सो रिटार्डेशन लगेगा तो रुक जाएगी, कोई चीज चलती रुक जाएगी। आपने पत्थर फेंका और वो रुक गया। तो थर्ड रिटार्डेशन, इक्वेशन ऑफ, अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। रिटार्डेशन फोर्स ऑन स्टोन कितना है? रिटार्डेशन है नहीं, माइनस न लगा, ये सॉरी अब नहीं, माइनस न लगा देना। अब जरा देखो 7th क्वेश्चन देखिए। देखो एक तो 5th कराएंगे, एक 6th कराएंगे, पहले 5th 6th कर लो। नहीं 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 फिफ्थ से फिफ्थ का हमारी फिर तो 6th करना, फिर आगे के दो बताएं। ये फिफ्थ का एक हाथ दो, एक हाथ दो। अभी आप नहीं लेंगे। सर फिफ्थ वाला भी एक बार इसी उठा के देख। हाँ? फिफ्थ वाला भी एक बार इसी इक्वेशन से बता दो। किससे? फिर माइनस इसके को नहीं करेगा। उससे कैसे बता दें? उसमें टाइम है दिया, इतना ही अच्छा जैसा दिया हो वैसे करोगे कि इतने में? पूरे गिराया तूने हाथ से दिया तो हाँ। तो मैं मैंने किया है। मार क्यों रही है? उठा के दे। सर मिटाना वो मिटा 6 मिनट नहीं यार कितनी गंदी ये बात है। क्या है उसकी मर्जी में रेड से करे, ब्लू से करे, येलो से और करे। मैं टेस्ट भी हाँ, रेड बोलो। पेन से दूंगा। 5th and 6th करना है, हटा दें? नहीं बहुत आसान है ये। फिर अगर- हम उठा दो। सुन लो, ये सभी को पता है, ये जिसे पता होगा वो कर लेगा, 70 हो जाएगा। और अगर जिसे ये पता होगा वो ये कर लेगा। इस 5th में सेकंड लॉ लगा दो, 6th में थर्ड लॉ लगा दो, एक मिनट और MA दोनों में लगा दो। ठीक हो जाएगा। हटो 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 जल्दी हटो। S is equal to UT plus half AT square. हटा दें आप? नहीं तभी तो फोर्स होगा, नहीं तो फोर्स नहीं। पेन है। अरे यार ये हो जाएगा। मैं रेड पेन से पेपर दूँ। रेड नहीं, ब्लैक ले लो, रेड से ना ठीक है। हम फिर तब चले। यही तो है मेरा ही तो। ओके नाउ आई एम लविंग। नहीं एक मिनट। तो च्युइंगम यहाँ मत कर, ठीक है? वो साफ करते करते हालत खराब हो जाती है। क्या कर रहे हो? लोग नीचे चिपका देते हैं, वो मैं साफ थोड़ी ना चुप करता मत खाया करो। हाँ स्कूल उसको वाली निकल क्यों नहीं लेती? ना मेरे भी तेरी बेंच पे काफी युवा तो बैठा था। तेरे बेंच पे ऐसे बैठा होगा मैंने ओके। सनी ठीक है? बाकी PDF से देख लेना। ठीक है भाई साहब। ट्राई नहीं करना भी। सर अब मैं आप मिटा दो जल्दी जल्दी, मुझे दोनों इक्वेशंस लिखनी है, एक टॉप पे लिख दूंगा। क्या हो रहा है? चलो। 5th and 6th. अच्छा बुक से ओके ओके।
देखो अगर फ्रिक्शन लिखोगे तो माइनस नहीं लगाना। रिटार्डेशन लिखोगे तो भी नहीं लगाना। फ्रिक्शन लिखोगे तो भी नहीं लगाना। अभी देख रहा अब क्या बस सर 5 मिनट के लिए पेपर दे दो। बस 5 मिनट में दे रहे हैं। 8,000 kg इंजन, ये देखो ये इंजन है एंड इट पुल्स 5 वैगन। तो ये वैगन है, इसको ये पुल करना है। अच्छा, एंड इट ऑल मूव्स ऑन रेल ट्रैक। अब जरा देखो, इट इज लोडेड विथ कोल। अच्छा ये बताओ ये कितने केजी का है? 8 टन और बाकी 2000 टन केजी सही है। 2 टन भी बोला तो ठीक बोल रहा है। ये तो 2000 टन 2000 चलिए। 2 टन अच्छा न्यूटन है If the engine exerts, सुनो ये इंजन है। अच्छा इंजन इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? इंजन ही तो कर रहा है। 40,000 न्यूटन। So, ये फोर्स कितना है? 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन। और इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये बताओ? 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शन इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। फ्रिक्शन मोशन के विपरीत लगता है। तो फ्रिक्शन कितना बताइए? 5,000 न्यूटन। तो ये मुझे बताइए नेट फोर्स इस पर ये वैगन्स पे क्या लग रहा है? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन। तो बोलो अर्पिता अप्लाइड फोर्स कितना है? 40,000 न्यूटन और फ्रिक्शन कितना है? 50 न्यूटन तो 35 तो मैंने वो नहीं लगाया। सही है। मतलब ये ट्रेन एक्सीलरेट करेगी कि नहीं करेगी ये मुझे सब तो फ्रिक्शन पता एक्सेलरेट करेगी। क्यों? क्योंकि 5,000 से 5,000 काउंटरैक्ट हो गया और जितना बच गया वो नेट फोर्स है। वो नेट फोर्स क्या MA के इक्वल होगा और उससे A निकल आएगा। मास इंटू एक्सीलरेशन करोगे ना इसी नेट फोर्स को। नेट फोर्स को ही तो MA करोगे और उससे फिर आप एक्सीलरेशन। अब देखो तो पहला क्या है? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। क्या आपने ये आंसर निकाल दिया है? द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन। सेकेंड G minus G। सो अब इतना फोर्स हो गया। अब 5 वैगन पे ये फोर्स लग रहा है। ये फोर्स किस पे लग रहा है? 5 वैगन। इंजन छोड़ दो, इंजन अप्लाई, ये अप्लाई करने वाली चीज है। इंजन क्या है? आदमी समझो, क्योंकि फोर्स लगा रहा। तो बताओ नेट मास क्या हुआ? लिविंग इंजन, इंजन नहीं लेना है। तो 2000 kg इंटू तो 10,000 का मास खींचा जा रहा है जो कि इंजन के द्वारा खींचा जा रहा है। और नेट फोर्स क्या है? 35,000। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं एक्सीलरेशन कैसे निकालूं? F is equals to ma। नाउ मितेश इसमें मैं क्या क्या वैल्यू डालूं? सर आप हमारे सर F होगा सर 35,000। ओके सर और मास होगा सर 40,000। ठीक है। सर और एक्सेलरेशन सर फिर बाकी अर्शिका? So mass 10,000 सर 10,000 10,000 kg क्योंकि यही है ना 10,000 किलो पांचों टिप्पों का वजन। सर देखा नहीं। ओके ओके चलता है। छोटा है 90 लाख उधर 0.5 मीटर पर सेकंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
8th क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास देखिए जरा। गाड़ी। ऑटोमोबाइल व्हीकल 1500 किलो की है। बड़ी हल्की है। 1000 किलो की कार होती है। What must be the force between road and vehicle if vehicle is to be stopped? इस गाड़ी को मुझे रोकना है, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि ये गाड़ी कितने रिटार्डेशन से रुक जाए? इसके मास से बोलो, यही लिखा है। हाँ। 5 दिया है, ए दिया है, निकालना है तो कुछ सरल है कि कठिन? सारा। तो F इक्वल्स टू, लेकिन इस सवाल में गलती कहाँ हुई? सेकंड क्वेश्चन नंबर कटेंगे सर के रबर ऐसे ही 2 आंसर तो -5 मैंने नहीं करना। सर आप माइनस में जा चुके हैं आपके ये नंबर, देखो, पहले ही 2 थे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बात ना करें एक लफ्ज में। तीन 17 कैसे मल्टीप्लाई करो? देखो जादू करने में जादू ब्लैक मैजिक माइनस में लिखना। देखो 1500 है और ये 1.7 है, इतनी बात समझ आई? अब देखो थोड़ा बहुत हमको भी अबाकस आता है। अब देखो, चलो 9th क्वेश्चन में आंसर गरिमा दें। हाँ 2 अबाकस। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? एमवी। वीडियो ओके, अभी कहीं शुगर नहीं, रूल्ड आउट। लेकिन सर मैं अबाकस बोला था तो भी अच्छा हमने वो पढ़ा नहीं ना। नहीं, 10th तो है। सुनो, हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया और हम एक वुडन कैबिनेट को मूव करना चाहते हैं, इंटेंड टू मूव, अभी मूव होने वाली है जस्ट। तो मुझे क्या ये बताओगे कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, विल इट एक्सटेंड ऑन द कैबिनेट? तो ये कैबिनेट है और इस कैबिनेट पर कितना फोर्स लगेगा कि अगर एक आदमी इसको चलाने की कोशिश कर रहा है और कितना फोर्स लगा रहा है? तो बताओ ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैबिनेट पर कितना? इट इज इंटेंड टू मूव, बस चलने ही वाली है। अगर ये 200 से 0.1 भी ज्यादा लगा दे तो चल जाए। 200 न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स देखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज 200 न्यूटन between floor and cabinet. Floor and cabinet opposite to the direction of applied force. आरोपित बल के विपरीत दिशा में ये घर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या? अपोजिट टू सर ये 10th वाले को द डायरेक्शन। अभी समझो, अगर मान लो आपने 200 न्यूटन फोर्स लगाया, अब बस वो चलने वाली है, तो आप अभी चली नहीं है, तो उस पर कितना फ्रिक्शन कार्य कर रहा है? और वो किधर जिधर लगा रहे हो क्या उधर ही लग रहा है फ्रिक्शन की? उल्टा अपोजिट टू द डायरेक्शन। अब देखो 11th नहीं है, 12th देखो। Student justify this by answering. 12th क्वेश्चन देखो। 17 तो देखो। हमने
पहले 7th 8th करना है, 7th और 8th का पेपर पर्चे पे इम्पोर्टेंट नंबर दिलाएंगे आप। 7 नंबर शीट है। बस हो जाएगा सर। अमितेश अमितेश यस बोल रहा पर्चा मिल रहा है। अमितेश बोलो यस बोलने के लिए। ये ले लो पेपर, इसी में पंजीरी खानी है। पंजीरी पंजीरी भी मिलती है, पंजीरी नहीं खाई। देखना तो पड़ेगा क्या करना है। Yes, sir. ये यहाँ डेसिमल है, ये डेसिमल है, डेसिमल। सर एक मिनट साइड हो ना, ये करके फिर जा सकते हैं। हाँ, ये दोनों सवाल है। एक सेकंड सर लिखना है अभी। सर मेरे को 7th का फर्स्ट पार्ट उस इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट इंजन इसे इधर खींच रहा है। फ्रिक्शन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन? हाँ, पढ़ो। और 40,000 नेट फोर्स ये भी दिया हुआ है। हाँ, एक्सरसाइज से लाइट फोर्स दिया हुआ है। अच्छा हाँ बिटा दो, हो जाएगा। सर नेट मास में आपने क्या क्या हो जाएगा? नेट मास में क्या क्या ये 5 वैगन, ये फोर्स लगाने वाली एजेंसी है, इसका मास नहीं। अगर तुम किसी को खींच रहे हो तो क्या तुम्हारा मास भी चाहिए? सर 10th वाला मत मिटाना, 10th वाला देखना। Yes, sir. 10th वाला मत मिटाना। 10th वाला मत मिटाना। वही कहा अभी वो लगा ठीक ही बोला था। 7th और 8th करेंगे। ओके करिए। Yes, sir. स्टेटमेंट नहीं है। 7th और 8th है, बस फिर छुट्टी। चलो फिर हो नहीं पाएगा बेटा, कम ऑन जेफरी। और सभी लोग शुरू कर दिए। देखो कुछ लिखना था कि ब्रैकेट में? बात ना कर। अभी नहीं लिखना, थोड़ी देर बाद लिखना। माइनस ही आ गया उसमें ना? नहीं माइनस भी है। हाँ और किसी को नहीं। सर बस 5 मिनट। सर से बुक खुली अप्लाइड कोर्स सौम्या यशिका की खुली है। डायग्राम बनाओ आप No, sir. ठीक है। गिवन लिखना क्या क्या है। मैं नाम की जगह गिफ्ट Okay, now keep on talking. Sorry, now keep silence.